ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ। ਇਹ ਪੇਪਰ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ PSSB ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ IT ਐਂਡ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਤੋਂ। IT ਐਂਡ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਤੋਂ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਜੋ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਬਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ GK ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਟੋਟਲ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ। 100 ਦੇ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੈੱਟ A। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਇਨ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ B ਆਪਸ਼ਨ KSU। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ B, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ B। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈ E। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ C ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ D ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ FG ਛੱਡ ਕੇ H ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ H ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ I और J ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ K, ਯਾਨੀ K ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। A ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, C ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਜਿਟ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ M ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ O, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ N ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ O, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ QR ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਆ ਗਿਆ S, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ S। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OPQ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ P। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ST ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ U ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ B ਆਪਸ਼ਨ KSU। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਂਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ 96, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 96। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 96 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ 94। ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਗਿਵਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 10 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 22 ਬਣ ਜਾਏ, 12 ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 46 ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 24 ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ 6 ਕਮ 6, 6 ਦੂਣਾ 12, 6 ਚੌਕਾ 24, ਯਾਨੀ ਦੁੱਗਣਾ ਦੁੱਗਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12, 12 ਦੂਣਾ 24। ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਹੋਏਗਾ 48। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 94 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 96, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ C ਆਪਸ਼ਨ 96। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 94 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ C ਆਪਸ਼ਨ 96 ਵਾਲਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3rd ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, 3 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 2 ਸਕਸੈਸਿਵ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 123 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 25% ਦਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 200 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ X ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫਸਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ X ਬਟੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 25% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ 75% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 75% ਦੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਟੇ ਕਰ ਦੇਣਾ 100। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ 2 × 2 50 ਦੂਣਾ 100। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਤੀਏ 75, 25 ਦੂਣਾ 50। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 123 ਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੀਏ 3 × 3, 3 ਚੌਕੇ 12, 3 × 3, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ X ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 41 ਦੂਣਾ 82।
यानी ये कोल अपने कोल एक्स की जी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 82 आ गई। यानी आप ये कह सकते हैं 82 जो है वो परसेंट के जो सेल किया जाता है ये अपने डिस्काउंट फाइंड करना है। यानी 100 के आप की माइनस कर देंगे 82%। तो अपने को डिस्काउंट कितने प्रतिशत आ गया 18% आ गया। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जूगा अपना डी ऑप्शन 18%। आई होप तो ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 4th नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आ इफ द कंपाउंड इंटरस्ट यानी कंपाउंड इंटरस्ट एक रेट के उपर जो अपन देखा है 16.2/3% के 4 सालों के 2210 रुपये बनते हैं। आपको पूछा गया है फाइंड द सिंपल इंटरस्ट यानी सेम सम होएगा सेम रेट होएगा सेम पीरियड होएगा। आपको पूछा गया है सिंपल इंटरस्ट कितना बनेगा अगर कंपाउंड इंटरस्ट इन्ना बनता है। आपको ये बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया तो पता एक फार्मूला आर इज इक्वल टू की होंगे 16/2/3 देखा है 16×3 = 2 50 यानी 50/3 लिख सकते हैं। आप 50/3 आप लिख सकते हैं जो परसेंटेज हटावे तो आप इनू लिख सकते हैं बटे 100 ला देंगे। जो आप 50/3 लिखांगे तो आप एक लिखते हैं परसेंटेज जो परसेंटेज हटावे तो मल्टीप्लाई 100 भी आपको करना पेगा। उस तो बाद जो आप कैंसल करेंगे तो अपने को जी वैल्यू आ गई 5 × 5 5 = 31 यानी आर की जी वैल्यू आ गई अपने को कितने आ गई 1/6 1/6 आप की कर सकते हैं। यानी आपको पता है 4 सालों के लिए इंटरस्ट लगता है तो अपने को पहली अमाउंट मान लो 6 रुपये सी तो उस तो बाद ब्याज लगन तो बाद कितनी होगी 7। इस तरह आपने 4 बारी कर देना है 6 7 6 7 6 7 6 7 इन्हों आपने की करना है आपस में मल्टीप्लाई। जो आप 6 ਨੂੰ 4 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 1296। इस तरफ आपको वैल्यू जी मिलेगी 7 ਨੂੰ 4 बारी मल्टीप्लाई करके तुम देख सकते हो 7 7 49 7 343 343 गुना 7 करा तो आपको वैल्यू मिलेगी 2401। इन्होंने दोनों के डिफरेंस कितना है ये अपने को जो डिनोट कर रहा है ये डिनोट किनू कर रहा है प्रिंसीपल अमाउंट को और जोड़ा ये डिनोट कर रहा है इस सिंपल कंपाउंड इंटरस्ट और प्रिंसीपल दोनों ही इंक्लूड ने यानी ये आपको डिनोट कर रहा है अमाउंट को। इन्होंने जो डिस्टेंस होएगा यानी डिफरेंस होएगा वो किनू डिनोट करेगा कंपाउंड इंटरस्ट को डिनोट करेगा। कितना डिफरेंस है इन्होंने 1105 रुपये का 1105 रुपये का डिस्टेंस है। बट आपको पता है ये 1105 का डिफरेंस नहीं है ये किन्ने का डिफरेंस है 2210 का 2210 का किन्ने गुणा है इस तो गुणा है 2 गुणा। ठीक है इस तो किन्ने गुणा है 2 गुणा। इस तरह अगर आप 1296 ले थे तो यह जो प्रिंसीपल है यह भी 2 गुणा होएगा तो अपने को जो आप 1296 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो आपको जी वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 2592 रुपये। यानी प्रिंसीपल अमाउंट कितनी आ गई अपने को एक्चुअल 2592 रुपये। आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरस्ट कितना देखा आपको 16/2/3 उस बाद टाइम कितना देखा 4 साल। आपको पूछा सिंपल इंटरस्ट कितना बनेगा। इस तरह आप की करेंगे आप सिंपल इंटरस्ट कटांगे 4 सालों का सिंपल इंटरस्ट 4 सालों का 4 ईयर्स का। अगर आप गल करिए अपने को अमाउंट कितनी है प्रिंसीपल अमाउंट 2592 और अपने रेट ऑफ इंटरस्ट लाना है 16/2/3 तो आप इनू की लिख सकते हैं 16 सही इनू आप लिख सकते हैं 16/2/3 इनू 50/3 लिख सकते हैं। तो आपको पता है जो आप 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे यानी 50/3 जो आप 50/3 जो आप 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे यानी 4 सालों की लगता है इसलिए आप डायरैक्ट कि मल्टीप्लाई कर देंगे 4 नाल तो आपको वैल्यू कितनी मिल गई इतों 200/3 200/3 तो आप की कर देंगे इतने 200/3 कर देंगे और जो आप परसेंटेज हटावे तो बटे भी की लग जूगा 3 नाल 2 जीरो लग जाएंगे यानी 3 गुणा 1/100 इधर 2 जीरो 2 जीरो कैंसल और जो आप इनू कटांगे 3 कम 3 3 8 24 और अपने लिए एक रिमाइंडर बच गया 1 ते 9 19 3 6 18 और 1 3 चौके 12 यानी 864 गुना 2 करांगे तो आपको जी वैल्यू मिल गई 4 दूना 8 6 दूना 12 एक रिमाइंडर 8 दूना 16 तो 1 17 यानी 1728 रुपये ने जोड़े वो सिंपल इंटरस्ट ने जोड़े ये बन गए इस सेम रेट ऑफ इंटरस्ट से सेम प्रिंसीपल अमाउंट से और सेम ईयर के यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन 1728 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने को ए ऑप्शन 1728 रुपये। आई होप तो ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता पंजाब के एग्जाम के। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 5th नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आ एक सम है जो कि 427 रुपये आपको दिते हैं। इसनों आपने 3 परसनस के डिवाइड करना है ए बी और सी दे विच इन्हां दी जिहड़ी रेशो दे रखी है आपको दे रखी है 3 टाइम्स ऑफ ए यानी आप ये कह सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ ए 3 लिख लेंगे और 4 टाइम्स ऑफ बी यानी 4 टाइम बी और 7 टाइम्स ऑफ सी शेयर आर इक्वल यानी आपको ये कहना ने 4B इज इक्वल टू 7C ये तीनों की ने शेयर ने जोड़े बिल्कुल इक्वल देते हैं। अगर आप इन्होंने तीनों का एलसीएम ले लीए यानी 3 4 7 का जो आप एलसीएम लवेंगे 3 चौके 12 12 7 84 यानी अपने को डायरैक्ट एलसीएम कितना आ गया 84 अपने को एलसीएम आ गया। यानी आप इनू की बनावांगे रेशो के कन्वर्ट करना पऊगा आपको। अगर आपने इतने 84 बनाना है यानी इतने आपने 84 बनाना है अगर इतने भी 84 बनाना है तो इतने भी 84 बनाना है तो आपको पता है कि 3 नाल डिवाइड करांगे तो आपको कि वैल्यू मिलेगी 28 मिलेगी
यानी 28 रेशो। उस तो बाद 84 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ 21 ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 84 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੇਗੀ 12। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 427 ਰੁਪਏ। 427 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। 28 ਤੇ 12, 28 ਤੇ 12 40, 40 ਤੇ 20 61। 61 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ 427, 427 ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। 427 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 28 ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਟੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 61 ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 61 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 427 ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ 28 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 196 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ 196 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਓਨਲੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਏ ਆਪਸ਼ਨ 196, 147 और 84। अगर आप गल करिए बी दी, बी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 427 ਗੁਣਾ 21 ਬਟੇ 61, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉਹ 21 ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 61 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ 61 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 427 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7। 21 ਸਾਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 20 ਸਾਤੇ 140, 147 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਣੇਗੀ 84 ਥਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 196, 147 ਤੇ 84। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 6 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 8 ਘੰਟੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 50 ਪੇਜਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ 50 ਪੇਜਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਰਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੀਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 6 ਘੰਟੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ 50 ਪੇਜਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ 8 ਘੰਟੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਸੇ ਸੇਮ ਕੰਮ ਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੀਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ 100 ਪੇਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਮਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 50 ਪੇਜਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗਰ 8 ਘੰਟੇ 50 ਪੇਜਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 16 ਘੰਟੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ 100 ਪੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਪੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ? 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਰਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 8 ਘੰਟੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 50 ਪੇਜਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, 16 ਘੰਟੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ 100 ਪੇਜਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 100 ਪੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰੀਨਾ। ਰੀਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 6 ਘੰਟੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਪੇਜਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ 12 ਘੰਟੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ 100, ਔਰ 16 ਔਰ 12 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 48 ਆ ਗਿਆ, 48। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ 16 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 12 ਘੰਟੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ 16 ਦੀ 48, 12 ਚੌਕੇ 48, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 48 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 3 + 4, 3 + 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ 7 ਦੇ ਨਾਲ। 7 ਤੋਂ 7 49 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 7 ਤੋਂ 7 49 ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42, 6 ਬਚ ਗਿਆ, 6 ਸਹੀ 6/7, ਯਾਨੀ 6/7 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਸੇਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਮਨ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੀਨਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 6/7 ਘੰਟੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 7th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? r ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਈਚ ਸਰਕਲ ਦਾ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਸਰਕਲ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਏਰੀਆ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 378 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ r ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, यानी यह की अपने कोल ये है रेडियस, यानी यह डिनोट कर रहे हैं आप आर दे नाल। इसी तरह यह भी किनू डिनोट कर रहे हैं रेडियस के नाल। अगर आप इन्होंने दोनों मिला दिए तो अपने कोल जी स्केयर है ये अपने कोल एक साइड आ चुकी है, यानी आप एक जी स्केयर की साइड है उन्होंने आप की कंसीडर कर सकते हैं, 2 आर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने कोल दोनों मिला के 2 आर मिला के अपने कोल की बन रहा है एक साइड बन रही है रेडियस की और स्केयर की साइड की। तो अपने कोल जी एक साइड है स्केयर की वो कितनी आ गई अपने कोल 2 आर आ गई, 2 आर अपने कोल आ चुकी है। और अपन ये भी पता है कि जो स्केयर होंगे वो एरिया का फार्मूला की होंगे 2 आर स्केयर।
यानी अगर अपने एरिया फाइंड करना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते होंगे। अगर अपने को ये 2 आ रहा है तो अपने को भी 2 आर हो जाएगा, ये भी 2 आर हो जाएगा। इस तरह अपने को ये साइड भी कितनी हो जाएगी, 2 आर हो जाएगी। इसलिए आप की कह सकते हैं कि अपने को जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, 2 आर स्केयर माइनस की कर देंगे अपने को पाई आर स्केयर, जो अपने को एक जो एरिए का जो अपने को सर्कल का एरिया है उन्होंने माइनस कर देंगे आप। पाई आर स्केयर इज इक्वल टू कितना दे रखा अपन 378 दे रखा है, और आप इनू करेंगे 4 आर स्केयर आ जाऊगा अपने को 4 आर स्केयर। इसी तरह अपने को कितना आ जाएगा, पाई आर स्केयर एज इट इज आ जाऊगा इज इक्वल टू कितना आ गया अपने को 378। और अपने को इतों आप कॉमन ले सकते हैं, आर स्केयर कॉमन ले सकते हैं। आर स्केयर कॉमन लैन तो बाद 4 माइनस कितना कर देंगे, ये आ जाऊगा अपने को पाई स्केयर एज इट इज। आर स्केयर बारे आ गया यानी पाई ए बच गया अपने को डायरेक्ट इज इक्वल टू कितना आ गया अपने को 378। आर स्केयर इज इक्वल टू 4 माइनस 22/7, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 या फिर 3.14 इज इक्वल टू कितना कर देंगे 378। 7 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आप इसनों एलसीएम लवांगे तो अपने को 28 बन जाऊगा, 28 माइनस 22 करा 6 आ जाऊगा। आर स्केयर अपने को नाल है इतने कितना आ गया अपने को सच को 28 माइनस 22 यानी 6/7 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने को 378। इतों आप आर स्केयर की जी वैल्यू है फाइंड कर सकते हैं। 7 है ये मल्टीप्लाई हो जाऊगा, 6 है बटा चला जाएगा यानी 378 गुणा 7 बटे की लिख देंगे आप 6 6 6 36 और एक रह गया अपने को 6 3 18 63 गुणा 7 7 21 एक 2 रिमाइंडर 7 6 42 तो 2 44 यानी आर स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 441। जो आप इन्हों अंडरूट करेंगे तो आर की वैल्यू 441 अंडरूट करेंगे तो अपने को वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, दैट इज 21। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा ऑप्शन 21 इसका बिल्कुल राइट आंसर होएगा। यानी ये साइड भी कितनी होगी अपने को 21, ये भी कितनी होगी 21। ये आपको रेडियस ही पूछा गया कितना सेंटीमीटर होएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन 21 सेंटीमीटर। आई होप तो क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 8th नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। सीमा राइड्स हर कार एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड शी रिचेज हर डेस्टिनेशन इन 6 आवर्स। यानी सीमा के द्वारा एवरेज स्पीड के नाल डिस्टेंस कवर किया जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब के 6 घंटे के अपना जो सफ़र तय किया जाता है, और सेम डिस्टेंस को कवर किया जाता है रीमा के द्वारा 4 घंटे के। अगर इन्हों के द्वारा एवरेज स्पीड है जी 10 किलोमीटर और रीमा के द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब के इनक्रीज़ कर दी जाए तो आपू इन्हों जो डिफरेंस आएगा टाइम टेकन के बेसिकली आपको क्वेश्चन के पूछा गया। सब तो पहला अगर आप गल करिए सीमा के द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया जाता है ये आप कट सकते हैं। इतों आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू की होंगे डिस्टेंस ओवर टाइम, तो आपू डिस्टेंस पता कर सकते हैं स्पीड इंटू टाइम करके। यानी आप ये कह सकते हैं अपने को स्पीड कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, और अपने को जो इन्होंने टाइम दे रखा वो कितना दे रखा अपने को 6 घंटे। यानी आप जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकते हैं, यानी उन्होंने फाइंड कर सकते हैं 180 किलोमीटर। 3 6 18 यानी 180 किलोमीटर की आ गया अपने को डिस्टेंस। इत्थे तक आई होप तो सारे समझ आया होगा। ये आपने फाइंड की कर लिया डिस्टेंस, दोनों के द्वारा सेम डिस्टेंस को कवर किया जाता है। तो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होंगे, तो अपने को डिस्टेंस कितना 180 किलोमीटर का, और आपको पता है 10 किलोमीटर इसकी जी स्पीड है वो बढ़ जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं 30 जगह कितनी होगी अपने को 40 होगी, और ये कि स्पीड आ गई अपने को सीमा की। इस तरह अगर आप रीमा की कढ़नी हो तो यदा भी डिस्टेंस कितना है 180 का, और अपने को 180 के डिवाइड कि करेंगे आप 5 किलोमीटर की स्पीड बढ़ जाती है। यानी ये पहला स्पीड कितनी सी अपने को, अगर अपने पहला की स्पीड इसकी कढ़नी हो तो आप कर सकते हैं। तो आपको पता है 180 किलोमीटर पहला जो डिस्टेंस सी वो सी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और टाइम है कितना लगता सी 4 घंटे। इनू कटांगे जो आप 45 कट जूगा, यानी स्पीड कितनी आ गई अपने को 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा आप इन्हों डिवाइड कर देंगे। जो आप 45 किलोमीटर प्रति घंटा के डिवाइड करेंगे, 45 नहीं करना सॉरी, इतने आपने 5 की स्पीड है जी वो इनक्रीज़ भी करनी है। यानी इतने अपने को कितना आ जाऊगा 50 आ जाऊगा, क्योंकि 5 किलोमीटर की ये द्वारा रीना के द्वारा बढ़ाई जाती है अपनी स्पीड, और जो सीमा है इसके द्वारा 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाई जाती है। जो आप इन्हों कटांगे तो अपने को 0 0 कैंसल, चौकम चौकी 16 और 2 रिमाइंडर अपने को कितना आ गया 4.5 4.5 माइनस इतने कितना आ जाऊगा अपने को 0 0 कैंसल, 5 3 15 6 3 बच गया अपने को 5 के 30 यानी 3.6 माइनस कर देंगे 3.6। जो आप इन्हों सॉल्व करेंगे तो अपने को वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.9 0.9। इनू आप मिनट के कन्वर्ट करना तो आप 60 में मल्टीप्लाई भी करना पेगा। अगर आप 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिनट कितने मिल जाएंगे 54 मिनट। 9 6 54 होंगे तो अपने को 54 मिनट का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन के दिता गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन 54 मिनट। आई होप तो ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर अ सर्टेन मंथ द डेट्स ऑफ 3 ऑफ द संडेज आर ईवन नंबर्स वट वुड बी द डे ऑफ द 15th ऑफ दैट मंथ। यानी आपको कहा गया है एक खास महीने में
3 ਐਤਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਈਵਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਈਵਨ ਸੰਡੇਜ਼ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਸੰਡੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡੇਟ ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ, 2 ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, 9 ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, 16 ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 23, ਨੈਕਸਟ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 23। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 16, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 23। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਓਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, 16 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਡੇ ਹੈ। 16 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 15 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਟਰਡੇ, ਯਾਨੀ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਟਰਡੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਏਗਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਟਰਡੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਫੇਸ ਆਫ ਅ ਕਲੋਕ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾਈ ਇਟਸ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ between 9 AM and 9:35 AM if the minute hand is 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ long। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੋਕ ਹੈ ਇੱਕ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ, ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਇਸ ਦਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਕਲੋਕ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 9 AM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:35 AM ਤੱਕ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2/7। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 18 × 18, ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 18 ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:35 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, 35 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ। 35 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, 35 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 60। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 360 ਦੇ ਨਾਲ, 360 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6 36, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 210 ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ 210 ਬਟੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 360, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ, 360 ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 7 21, ਯਾਨੀ 30 ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 7 21। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, 18 × 18, 18 2 36, ਇਹ 20 ਕੱਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, ਔਰ 2 × 18, 2 × 18, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ, 22 × 9 × 3, 22 ਤੇ 66, 66 × 9, 9 × 54, 5 ਰਿਮਾਈਂਡਰ, 9 × 54 ਤੇ 5 59। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, 594। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 594 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 594 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, 11 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਣ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 216 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਥ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1/3 ਆਫ ਇਟਸ ਲੈਂਥ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਦਾ 1/3 ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਪਥ ਹੋਏਗਾ, ਡੂੰਘਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਬ੍ਰੈਡਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 1/2 ਆਫ 1/3 ਆਫ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਡੈਪਥ, ਯਾਨੀ ਲੈਂਥ ਔਰ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ 1/2 ਆਫ 1/3 ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਟੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1/3 1/2 1/3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਐਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 9। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 9 ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡਥ ਆਫ 1/2 ਆਫ 1/3 ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਡੈਪਥ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਮਾਈਨਸ ਹਾਈਟ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਡੈਪਥ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕ ਹੈ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹਾਈਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1/3 ਆਫ ਇਟਸ ਲੈਂਥ, ਯਾਨੀ 1/3 ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਫ ਇਟਸ ਲੈਂਥ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3 3 9, ਯਾਨੀ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡੈਪਥ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡਥ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੈਂਥ ਮਾਈਨਸ ਹਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ, 6 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ 1/2 1/3 1/2 1/3
1/2 1/3 ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ 2 3 6 6 ਨਾਲ 6 ਕੈਂਸਲ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਆ ਗਈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 9 ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3, ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ 1 ਦੇ ਰੱਖਿਆ 3 ਹੈ 27 ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 27 ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 27 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 216। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 27 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 216 ਬਣ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। 27 8 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 216। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 9 ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 72 DM। 72 DM ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੈਂਥ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 72 DM। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 8 ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 24। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 72 DM। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 12th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 130 ਮੀਟਰ ਔਰ 110 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਨਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 130 + 110 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 240 ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ x - y ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 60 × 60 60 ਚੌਕੇ 240 ਯਾਨੀ x - y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 240 ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਐਡ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। x + y = ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਸੈਕਿੰਡ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ 8 × 24 ਯਾਨੀ 80 ਆ ਗਿਆ। x + y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 80 ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। y ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 2x ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 84 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਊ 42। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 42 ਮਿੰਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ 38 ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 42 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 42 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 13th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 18 ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਯਾਨੀ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਓ ਦ ਵੂਮਨ ਇਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਓਲਡ ਹਰ ਡਾਟਰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਵੂਮਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਏਜ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਡਾਟਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਡਾਟਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਦਰ ਵੂਮਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੂਮਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੂਮਨ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਟਾਈਮਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ x ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ 3x ਹੋ ਜੂਗੀ। 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x + 18 ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 3x + 18 ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਏਜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2x + 36 = 3x + 18 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -3x ਕਰਾਂਗੇ -x ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 36 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -18 ਕਰਾਂਗੇ -18 ਦੇ ਵਿੱਚ -36 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -18 ਆ ਜਾਊਗਾ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 18 ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 18 ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਰ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2x + 18 ਯਾਨੀ x + 18 ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਡਾਟਰ ਦੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਰ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 18 + 18 x ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 38 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੂਮਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਏਜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 3x + 18 ਯਾਨੀ 54 + 18 72
72 प्लस 36 की वैल्यू आपको बेसिकली पूछा गया। 72 प्लस 36 6 ते 2 8 और 7 ते 3 10 यानी 108 साल। 108 साल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिता गया। 108 साल इन्हों दोनों वूमेंस और उसकी धी की जी एज है उसका सम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन 108 साल। आई होप तो ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 14 ते 15 नंबर क्वेश्चन। DI टाइप का आपको एक क्वेश्चन पूछा गया सी। 14 ते 15 नंबर क्वेश्चन जोड़े पूछे गए सी। सब तो पहले आप देखते हैं 14 नंबर जो क्वेश्चन है उस की पूछा गया। 14 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है वट इज़ द रेशो ऑफ फीमेल्स इन EDP एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट टुगैदर टू द नंबर ऑफ मेल्स इन सेम डिपार्टमेंट टुगैदर। यानी आप ये कह सकते हैं EDP प्लस अकाउंट्स, यह की दिता अपन फीमेल्स। इस तरह अपने इनू रेशो के कन्वर्ट करना है EDP प्लस अकाउंट्स और ये अपने को मेल गिवन ने, इन्होंने अपने रेशो के कन्वर्ट करना है। अगर आप गल करिए सब तो पहला EDP और अकाउंट्स के वूमेंस के संख्या कितनी है। इतने देखिए आप अगर EDP अपने को कितना गिवन है, वो गिवन है अपने को 20 और अपने को जो औरतों की संख्या वो कितनी दे रखी है 45% दे रखी है। इतने तुम देख सकते हो 45% अपने को किन्ना दे रखी है औरतों की संख्या और अपने को टोटल जो कर्मचारी ने किन्ने ने 20 ने और इन्होंने जो 45% ने औरतों की संख्या दे रखी है। तो अपने को डायरैक्ट आप 20 को 45 मल्टीप्लाई करेंगे यानी अपने को 9 वूमेंस आ गई। इस तरह आप अकाउंट्स के भी कर सकते हैं। अकाउंट्स के अपने को टोटल 50% ने और 60% की ने औरतां ने। 60% 5 के 30 यानी डायरैक्ट अपने को 30 की आ गई वूमेंस आ गई। यानी आप डायरैक्ट ये कह सकते हैं कि ये अपने को 30 प्लस 9 यानी 39 अपने को दोनों आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह आप वूमेंस तो बाद मैंस का भी फाइंड करना है। इतने तुम देखोगे अगर आप ये 20 9 फाइंड कर ले तो बाकी की होंगे मेल होंगे और ये जो आपने 30 फाइंड कर ले जो कि औरतों की संख्या है, बाकी किन्ने बच गए अपने को 20 बच गए तो अपने को किन्ने आ गए 31 आ गए। यानी यदि न्यू रेशो कि बन गई अपनी 39:31 39:31 जो कि आपको दिता गया है ए ऑप्शन के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन 39:31 ए ऑप्शन इस करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है वट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स की रेशो पूछा गया है इन द सेल्स डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी सेल्स रेशो और अपन प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के रेशो पूछी गई है, इन्होंने दोनों की रेशो पूछी गई है। अगर आप औरतों की संख्या देखिए सेल्स के विक्री के यानी ये देखोगे तुम टोटल किनिया वूमेंस ने 200 और ये 60% की ने वूमेंस यानी 2 6 12 120 आ चुकी ने अपने को 120 कि आ चुकी ने अपने को सेल्स के आ चुकी ने। इस तरह आप प्रोडक्शन के भी है जो फाइंड कर सकते हैं। उस तो बाद प्रोडक्शन के कितने है अपने को है उत्पादन के आपको पता है 400 ने और 55% की ने वूमेंस। अगर आप 50% कढ़िए तो अपने को कितना आ जाऊगा 200 आ जाऊगा। ठीक है, और 4 5 20 यानी 220 अपने को 220 आ गया है। 220 की आ गया प्रोडक्शन आ गया वूमेंस तो अपने को न्यू रेशो कि बन गई 120:220 0 ना 0 कैंसल 2 6 12 2 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ कटांगे तो 22 कट जाऊगा। यानी यदि न्यू रेशो कि बन गई अपनी 6:11 जो कि आपको बी ऑप्शन में दी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन 6:11। आई होप तो ये क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर तो लैके 35 नंबर क्वेश्चन तक जो कंप्यूटर IT एंड साइबर लॉ तो पूछे गए सी क्वेश्चन बी क्वेश्चन। सब तो पहला क्वेश्चन पूछा गया सी कंप्यूटर IT एंड साइबर लॉ तो 16 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यानी दिते गए 4 ऑप्शनों के किसनू कंप्यूटर का दिमाग समझा जाता है कंसीडर किया जाता है। यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसनू मन्निया जाता है, यह मन्निया जाता है बी ऑप्शन CPU नू सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट नू कंसीडर किया जाता है एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को है बी ऑप्शन CPU। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 17 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया सी जो सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया के डिवेलप होया है उसका नाम पूछा गया सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को है बी ऑप्शन परम जो है ये है इंडिया का सुपर कंप्यूटर जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया सी CDEC पुणे के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन परम जो करे है यह विश्व का सब तो पहला सुपर कंप्यूटर सी और इसनू अमेरिका के द्वारा बनाया गया सी करे 1 और सनवे टैहुलाइट एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है सनवे टैहुलाइट और यह 2017 तक सब तो ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर सी 2017 तक सनवे टैहुलाइट। और यह जो सुपर कंप्यूटर है यह है चाइना का, यह भी याद रखना है।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟ ਦੀ ਜੋ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਲਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 19 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 100 Mbps ਦੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2G ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 100 Mbps ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ 100 ਮੈਗਾਬਿਟਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ यानी 100 ਮੈਗਾਬਿਟਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਪਣੀ 2G ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ 3G 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ 2G ਐਂਡ 4G 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ यानी ਆਪਣੀ 2G ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ 4G ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 100 Mbps ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 4G। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ B ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਆ ਫੀਚਰ ਆਫ ਬਲੂਟੁੱਥ। ਬਲੂਟੁੱਥ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਲ ਆਰ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਬਲੂਟੁੱਥ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਟੁੱਥ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਾਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ यानी ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइस ਨਾਲ कनैक्ट हो के डाटा एक दूजे नाल की करता है इंटरचेंज करता है एक्सचेंज करता है। ये बिल्कुल सही है। और ब्लूटूथ है जिहड़ा ये यूज़ करता है रेडियो वेव्स नूं, ये भी बिल्कुल सही है। बट इस दे विच थोड़ा डाउट है यानी ये जो ब्लूटूथ है वैन टाइप ऑफ नैटवर्क नहीं होंदा क्योंकि ये छोटे लैवल का नैटवर्क होंदा है। यानी मान लो एक मोबाइल डिवाइस अपने कोल ये वाला है एक मोबाइल डिवाइस अपने कोल ये वाला है इसलिए अगर ये दोनों एक दूजे के नेड़े ने तां ही एक दूजे नाल संपर्क बना सकते हैं। यानी मान लो एक परसन चंडीगढ़ 'च बैठा है एक परसन दिल्ली के बैठा है ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਡੀ ਔਰ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰ थर्ड स्टेटमेंट ने एक दूजे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं क्योंकि पहली दे विच आपां नूं ये कहता ने शॉर्ट डिस्टेंस कवर किया जाता है एक डाटा एक्सचेंज का मीडियम है ये माध्यम है यानी पहली और तीसरी जी स्टेटमेंट है एक दूजे को की करती हैं कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं यानी आप ये कह सकते हैं पहलियां दो बिल्कुल एग्जैक्ट ने बिल्कुल सही ने बट ये या तो ये हो सकता आंसर या फिर ये हो सकता है यानी सारिया फीचर्स ये ब्लूटूथ दियां कंसीडर कर सकते हैं या फिर आंसर वो ये देंगे यानी दोनों के कन्फ्यूजन है। अगर तुहानूं बिल्कुल क्लीयर है तो तुसीं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मैं तुहाडा जिहड़ा कमेंट है वो पिन कर दांगा। पिन दे विच तुहानूं पता लग जाएगा जो भी स्टूडेंट एग्जैक्ट होएगा वो नाल ये भी दसे कि तुहाने इसनूं किवें जिहड़ा चैक किया है। इसका आंसर भी तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में लिख के दस सकते हो बट मेरे अकॉर्डिंग इन्हां दोनों दे विचों एक आंसर होएगा सी और डी दे विचों। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 21 नंबर क्वेश्चन इस दे विच पूछा गया सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नैटवर्क डिवाइस। दिते गए 4 ऑप्शन के विचों किहड़ा नैटवर्क डिवाइस नहीं है। इसका जिहड़ा राइट आंसर अपने कोल वो है बी ऑप्शन मैक एड्रैस। मैक एड्रैस एक नैटवर्क डिवाइस नहीं है। RJ45 राउटर्स मॉडम तीनों की ने ये तीनों ने नैटवर्क डिवाइस बट इन्होंने पूछा किहड़ा नैटवर्क डिवाइस नहीं है तो उसका आंसर होएगा बी ऑप्शन मैक एड्रैस। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपको CD ROM स्टैंड्स फॉर यानी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CD ROM। CD ROM की जी फुल फॉर्म सही दी है आपको दी है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मैमरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मैमरी इज़ द करैक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में आपको जड़ियाँ मैमरी के साइज़ वगैरह गिवन ने आपने इन्हों अरेंज करना है इज इन द असेंडिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर के आपने इन्हों की करना है कन्वर्ट करना है। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मैमरी मैमरी के यूनिट्स दी ने इन्होंने आप अरेंज करना है। सब तो पहले अपने को छोटी आ गई पहले नंबर पर KB उस तो बाद अपने को MB आ गई उस तो बाद अपने को GB आ गई और अपने को TB आ गई। KB MB GB TB यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन KB MB GB TB इज करेक्ट आंसर। आंसर है इज द बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 24 नंबर क्वेश्चन इस दे विच पूछा गया आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जियोफेंस। इस दे रिलेटेड अगर किसी को कन्फ्यूजन है या फिर पूरा क्लीयर है तो तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में लिख के दस सकते हो कि इसका आंसर की होएगा। बट मेरे हिसाब के नाल इसका जिहड़ा राइट आंसर बनता है वो बनता है सी ऑप्शन। बाकी तुसीं कमेंट बॉक्स में लिख के दस सकते हो। इसका जिहड़ा आंसर है तुहानूं पिन कमेंट दे विच पिन कर दिता जाएगा। पिन कमेंट विच तुसीं चैक कर सकते हो इसका आंसर क्योंकि इस दे रिलेटेड कोई भी जिहड़ा डाटा अवेलेबल नहीं होया इसलिए इसका आंसर तुहानूं पिन कमेंट दे विच जिहड़ा प्रोवाइड कर दिता जाएगा जियोफेंस का क्वेश्चन।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ BCC ਦੀ। BCC ਜੋ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ CC BCC ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਬਲਾਈਂਡ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ। ਬਲਾਈਂਡ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਬਲਾਈਂਡ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को 26 नंबर क्वेश्चन, अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज मैनेजेस डाटा इन मोर देन वन फाइल्स एट वंस, इट ऑर्गेनाइजेज दीज फाइल्स एज डैश। एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा नूं एक तो वध फाइलों विच इक्को समय रखता है। इन्हां फाइलों नूं आपां की बोलते हैं? इन्हां फाइलों नूं बोलिया जाता है टेबल्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन टेबल्स। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ डाटाबेस अप्रोच। डाटाबेस अप्रोच की केड़ी है जी एडवांटेज नहीं है, यानी डाटाबेस का लाभ नहीं है। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों वो केड़ा नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को है बी ऑप्शन, जो अपने को बेलोड डाटा का खात्मा करना, यानी एलिमीनेशन ऑफ डाटा रिडंडेंसी है जो यह एक एडवांटेज नहीं है डाटाबेस अप्रोच की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को दे रखे आपको बी ऑप्शन के। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 28 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच पूछा गया है अगर आप MS वर्ड के विच Ctrl+R प्रेस करते हैं तो उस नाल की होएगा। इसका जो राइट आंसर दस्या आपको इस 4 ऑप्शन के दे रखे आपको डी ऑप्शन के। जी ये कमांड आप प्रेस करते हैं Ctrl+R, इस दे नाल राइट अलाइंस आई डी पैराग्राफ के दी जाएगी जो आपने पैराग्राफ सिलेक्ट किया गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दे रखे आपको दे रखा डी ऑप्शन के। दिस कमांड राइट्स राइट अलाइंस द सिलेक्टेड पैराग्राफ। इसका राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया आपको विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS वर्ड टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने लिए किहड़ी शॉर्टकट की आप MS वर्ड के विच यूज़ करांगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दस्या आपको वो दिता गया है डी ऑप्शन के। F12 है जी ये शॉर्टकट की आप यूज़ करते हैं जो MS वर्ड के विच आपने सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन F12। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा इन्हों के द्वारा ड्यूरिंग प्रिंटिंग ऑफ डॉकूमेंट, यानी जो आप किसी डॉकूमेंट को प्रिंट करते हैं एक तरफ एक आप गटर मार्जिन दें उसनों आप की बोलते हैं, यानी जो गटर मार्जिन होंदा है मान लो ये एक वर्ड फाइल है अपने को आपको पूछा गया इस वर्ड फाइल के आप गटर मार्जिन है किस तरफ ऐड करांगे। मान लो आप इस तरफ है जो बाइंडिंग करवाना चाहते हैं, इसनों बाइंडिंग इस तरफ करवाना है तो आपको गटर मार्जिन भी इस तरफ ही छड़ना पएगा। गटर मार्जिन है जो 1 भी रख सकते हैं, आप 0.5 भी रख सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा अपना बाइंडिंग साइड। जिस तरफ तो आप उस बुक को बाइंड करवाना चाहते हैं उस तरफ आप एक डिफरेंस छड्डते हैं, मार्जिन छड्डते हैं, उसको आप बोलते हैं गटर मार्जिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन बाइंडिंग साइड। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 31 नंबर क्वेश्चन, स्प्रैडशीट्स आर क्रिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, यानी स्प्रैडशीट्स ने जड़ियाँ ये आप किस दे विच है जड़ियाँ क्रिएट करते हैं बनाने आपको पूछा गया। वैसे तो आप जी स्प्रैडशीट्स होंगे ने इनू आप एक्सल शीट भी बोलते हैं और ये आप एक्सल के बनाने एक्सल शीट के बनाने यानी एक्सल के बनाने, बट एक्सल आपको दिते गए 4 ऑप्शनों के किसी के भी नहीं दिता गया। इसलिए अपना जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा बी ऑप्शन, लिब्रे ऑफिस CACLC, यानी लिब्रे ऑफिस CALC जो है यह एक प्रकार का MS एक्सल की तरह ही होंगे, उस दे विच आपां यूज़ करते हैं स्प्रैडशीट्स को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को है बी ऑप्शन, लिब्रे ऑफिस। बी ऑप्शन इज करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया अपने को इस विच सिंबल इज यूज्ड इन MS एक्सल टू स्टार्ट फॉर्मूला, यानी MS एक्सल के जो अपने फॉर्मूला स्टार्ट करना हो तो आप किहड़ा सिंबल यूज़ करांगे। इस दे विच जिहड़ा आप सिंबल यूज़ करांगे उसनूं बोलते हैं आप इक्वल टू, यानी जो आपने कोई भी जिहड़ा फॉर्मूला स्टार्ट करना होंदा MS एक्सल के विच उसके लिए आप इक्वल टू प्रेस करांगे तो ही जिहड़ा फॉर्मूला अपना स्टार्ट होएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रखे आपको ऑप्शन के इक्वल टू। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 33 नंबर क्वेश्चन, सुपोज एक्टिव सैल इन स्प्रैडशीट्स इज J10, यानी सुपोज कर लो मान लो कि अपना जो एक्टिव सैल है, एक्टिव सैल आप किहनूं बोलते हैं भला पता, एक्टिव सैल है जो आप बोलते हैं जिस दे उपर अपना जो माउस का कर्सर होवे, यानी मान लो इस दे उपर अपना एक कर्सर जो माउस नाल आप कर्सर हिलाने उसनूं बोलते हैं आप कर्सर। यह मान लो कर्सर है इत्थे, इसनूं आप की बोलेंगे ये मान लो J10 है अपने को J10। जो आप इस उपर J10 के उपर कर्सर है अपने को, जो आप इस उपर एंटर करांगे तो आपको पूछा गया ये कित्थे पहुँचेगा, ये पहुँचेगा J11 ते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रखे आपको ऑप्शन के J11।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 34 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 34 ਨੰबर क्वेश्चन ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਮਾਸਟਰ। ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਮਾਸਟਰ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਮਾਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਲੇ ਆਊਟ ਆਫ हैंड आउट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन, ले आउट ऑफ हैंड आउट। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 35 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द मीनस ऑफ प्रिंटिंग आउट फीचर्स नोट्स विद आ मिनीएचर स्लाइड ऑन प्रिंटेड पेज। हेठां दिते चौणा विचों किहड़ा चौण छापे होए पन्ने ते मिनीएचर साइड दे नाल लिखत विशेषतावां नूं छापन का साधन प्रदान करती है? यह जो साधन प्रदान करती है अपन वो प्रदान करती है डी ऑप्शन, ऑडियंस हैंड आउट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन, ऑडियंस हैंड आउट। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 36 नंबर क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग सीरीज फाइंड द मिसिंग टर्म, यानी इस जो क्वेश्चन मार्क दे रखे आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन मार्क से जो किहड़ा नंबर आएगा, किहड़ा अपने कोल है जो सीरीज के जो मिसिंग टर्म आएगी आपको यह पूछा गया। सब तो पहला अगर आप गल करिए इस अपने को जे है, इत्थे के है, इत्थे आई है अपने को, यानी इन्होंने अपने को कोई रिलेशन नहीं बनता। इस तरह अपने को इत्थे 2 है, इत्थे 4 है, इन्होंने कितना डिफरेंस हो गया 2 का, इत्थे कितना डिफरेंस हो गया अपने को 3 का, यानी इत्थे अपने 2 ऐड करता, इत्थे अपने 3 ऐड करता। नैक्सट आप कितना ऐड करांगे 4 ऐड करांगे, यानी अपने को यह पता लग गया कि विचाले कितना आएगा अपने को 7 तो बाद 11। अपने को 2 ने जो डिजिट ने वो इधर एक इधर, यानी लैफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों अपने को डिजिट आएंगे। और अपन उदों बाद पता लग गया एक्स तो बाद वाई होंगे, जेड आ गया अपने को यू वी डबल्यू, यानी इत्थे अपने को वाई का डिफरेंस पै गया ना दोनों के। इस तरह एक्स और वी के यू वी डबल्यू, इन्हों डबल्यू का डिफरेंस पै गया। इस तरह अपने को जो इस तो पहला नंबर डिजिट आएगा वो कि आएगा, एक अपन छड्डना पेगा यू एस टी यू, यानी अपने यू छड्डता तो अपने को जो नैक्सट डिजिट आ गया वो कि आ गया अपने को टी आ गया 11 टी, यानी अपना ए आंसर नहीं हो सकता, ए आंसर नहीं हो सकता। उस तो बाद अपने को अपन ये भी पता है कि जे जोड़ा यह किन्ने ते हुंदा है, किहड़े डिजिट ते हुंदा है, ये हुंदा 10 ते। और नैक्सट अपने को किन्ने ते हुंदा है, के है जिहड़ा जे तो बाद के, यानी ये 11 ते हो गया 11 ते। और नैक्सट अपने को गिवन है आई, आई किन्ने ते हुंदा है 9 ते 9 ते। इस तरह अपने को जिहड़ा नैक्सट नंबर है वो किन्ने ते दिता होया, इत्थे अपने को किहड़ा आएगा 12, यानी एल आएगा जिहड़ा 12 ते नंबर हुंदा डिजिट हुंदा वो किहड़ा हुंदा एल हुंदा। यानी आपां नूं पता लग गया कि अपने को जिहड़ा नंबर आएगा वो किहड़ा आएगा, इस दे विच एल आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर बन गया अपना वो किहड़ा बन गया अपने को सी ऑप्शन, एल 11T। क्योंकि इन्हां विच देखो इन्हां दे विच दोनों दे विच डिफरेंस कितना है -1 का। इस तरह इहदे विच जिहड़ा लॉजिक लगाया इन्होंने वो लगाया +2 वाला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, एल 11T, एल 11T। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 37 नंबर क्वेश्चन। एक सर्टेन कोड के विच कावेरी नूं आपां एवें लिखते हैं, आपां नूं पूछा गया आप पंजाब नूं किवें लिखांगे। सब तो पहला अगर आपां पहले 3 डिजिट ले लीए के ए वी, इन्हां नूं आपां ने रिवर्स करके लिखना है। के तो बाद अपने को ए वी, इन्हां नूं आपां ने की लिखना है रिवर्स करके, यानी अपने पंजाब नूं लिखना है, पंजाब नूं आपां इत्थे लिख लांगे। इहदे जिहड़े पहले 3 डिजिट ने वो किहड़े ने अपने को ये वाले ने, यानी इनूं आपां की लिखांगे नुप, NUP। इस तरह आप ERI, उस तो बाद IRE, इन्होंने 3 डिजिट में आपने ओपोजिट लिखना है, यानी इस तरफ तो इस तरफ लिखना है। इस तरह आप लिख लेंगे BAJ, नुपबाज, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन, नुपबाज, यानी बी ऑप्शन इस करैक्ट आंसर। आई होप तो ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 38 नंबर क्वेश्चन। किसी लैंग्वेज के विच, किसी कोडिंग लैंग्वेज के आपको कहा गया है माइंड है जिहड़ा इनू आपां लिखते हैं, इस तरह आर्गे नूं आपां इनू एवें लिखते हैं। आपको पूछा गया डायग्राम नूं आपां किवें लिखांगे, डायग्राम नूं आपां किवें लिखांगे, ये आपां बेसिकली पूछा गया। सब तो पहला अगर आप माइंड की गल करिए, माइंड के विच की लॉजिक लगाए गए इन्हां दे द्वारा। अगर आप डी नूं कंपैरिजन करिए, डी नूं बी नाल कंपैरिजन करिए तो अपने को सी का डिफरेंस आ गया, यानी -1 किया है। इस तरह अगर आपने N तो L तक जाना हो तो अपने को डिफरेंस कितना आ गया M का, यानी M छड्ड के उदों पिछला जो डिजिट होएगा वो इत्थे लिया इन्होंने। और उहदे बाद GH आई, यानी GH छड्ड के फिर आई आ गया इत्थे। M तो बाद M तो पिछला जो डिजिट होंदा है वो किहड़ा होंदा है JKLM, यानी L छड्ड के यूज़ कर लिया इन्होंने, के यूज़ कर लिया, यानी कि एक छड्ड के ओपोजिट पिछला लिखना है। यानी इत्थे अपने को M तो पहला किहड़ा डिजिट आंदा है L आंदा है, बट अपने L नहीं यूज़ करना, इत्थे यूज़ करांगे आपां के वाले किहड़े डिजिट ने लास्ट से किहड़ा डिजिट है, यानी अपना सी ऑप्शन नहीं हो सकता। इस तरह जो अपने को ए है, ए तो पहला किहड़ा आंदा डिजिट Z आंदा है, Z नहीं अपने यूज़ करना, आपां किहड़ा यूज़ करांगे Y यूज़ करांगे। तिन्नां दे विच अपने को Y गिवन है, तो इस तरह आपां नैक्सट आपां करांगे क्यू, यानी क्यू आपां लिखना नहींगा,
आर तो पहला क्या आंदा तो आप इत्थे यूज़ करांगे पी यूज़ करांगे। उस तो बाद नैक्सट अपने कोल है जी, एफ यूज़ करते नहीं आप, इत्थे किहड़ा आएगा अपने कोल ई आएगा। दिते गए 4 ऑप्शन के ये भी अपना एलिमीनेट हो गया। ई पी वाई के जो कि आपां नूं एक ही ऑप्शन के दिता गया है, वो दिता गया है ए ऑप्शन के, क्योंकि इन्हां दे विच पी ई वाई के यूज़ कर लिया, बट ई पी वाई के यूज़ होएगा जो कि आपां नूं ए ऑप्शन के दिता गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल ए ऑप्शन बी जी वाई ई पी वाई के। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 39 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया सी। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ देख के एक लेडी के द्वारा रमन नूं कहा जाता है आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, यानी आई एम द ओनली डॉटर, यानी इस लेडी के द्वारा कहा जाता है मैं उसकी ओनली पुत्री हाँ, यानी आप इत्थे एक लेडी कंसीडर कर लें। इत्थे मान लो अपने कोल की है एक लेडी कंसीडर कर ली, लेडी कंसीडर कर ली। इस तो बाद यदी एक मदर है, मदर आपने इत्थे कंसीडर कर ली। उस तो बाद आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, इस लेडी की गल चल रही है। और एंड हर सन इज़ योर मैटरनल अंकल, यानी इसका सन किहड़ा होएगा, इसका ब्रदर होएगा। यह लेडी है, इसका एक ब्रदर होएगा। ब्रदर को आप कंसीडर कर लेंगे BRO, ठीक है। ये कंसीडर करता है पॉजिटिव, पॉजिटिव निशान है जोड़ा मेल को कंसीडर करता है, और जोड़ा माइनस का निशान है यह कंसीडर करता है लेडी को, यानी फीमेल को। उस तो बाद नैक्सट इन्होंने कहा है यह मैटरनल अंकल है, यानी जो यह ब्रो है यह मैटरनल अंकल है किसका, रमन का। योर मैटरनल अंकल, यानी मैटरनल अंकल क्यों किमें होएगा, अगर इस लेडी का कोई बेटा हो, यानी इसका लेडी का मान लो बेटा है रमन, क्योंकि यह ओनली पुत्री है इसकी, इस लेडी की, इस करके यदा पुत्र होएगा एक रमन, जो कि आपने उत्थे दिता गया। इसका मैटरनल अंकल किहड़ा हो गया, ब्रदर, जो कि लेडी का ब्रदर है, यह अपने कंसीडर कर लिया, ये अपने को रमन। आपको पूछा गया हाउ इज़ द स्पीकर रिलेटेड टू रमनस फादर, यानी आपको पूछा गया है इस दे विच स्पीकर जो है, स्पीकर कौन है, लेडी, यानी इसकी गल चल रही है, इस लेडी की गल चल रही है। और आपको पूछा गया रमनस फादर, यानी रमन के फादर नाल यह किवें एसोसीएट है, रमन के फादर नाल इत्थे मान लो इसका हसबैंड है, रमन का फादर किहड़ा हो गया, ये वाला हसबैंड हो गया जिहड़ा रमन का फादर हो गया, और यदि यह की होगी घर वाली होगी, यानी वाइफ होगी, यानी आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन वाइफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन वाइफ। आई होप तो ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 40 ते 41 नंबर क्वेश्चन है जोड़े, ब्लड रिलेशन आपको एक टाइप का एक पजल टाइप क्वेश्चन दिता गया सी, जिस दे विच आपको 4 कंडीशनस दित्तियां गई सी। सब तो पहला दी गई सी आपको ए इज़ फादर ऑफ सी, ए जो है यह फादर है किसका, सी का, और बट सी इज़ नॉट हिज सन, यानी सी है जो पुत्र नहीं है, तो आपको ओबवियसली पता लग गया यह की है, डॉटर होएगी। नैक्सट अपने को गिवन है ई इज़ द डॉटर ऑफ सी, ई जो है यह डॉटर है सी की, ई इज़ द डॉटर ऑफ सी। नैक्सट अपन क्या है एफ इज़ द स्पाउस ऑफ ए, यानी एफ जो है यह पत्नी है किसकी, स्पाउस है किसकी, ए की, तो अपने को पत्नी आ गई, ठीक है। बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, यानी बी जो है यह ब्रदर है किसका, सी का, बी जो है ब्रदर है सी का, इतने रिनोट कर लिया। डी इज़ द सन ऑफ बी, डी जो है यह की है, सन है बी का। नैक्सट आपको कहने ने डी इज़ द सन ऑफ बी, जी इज़ द स्पाउस ऑफ बी, जी इज़ स्पाउस ऑफ बी, यानी जी है जी घर वाली है बी की, और एच इज़ द फादर ऑफ जी, एच इज़ द फादर ऑफ जी, यानी इतने फादर हो गया एच, जो कि फादर है जी का। यह सारी पजल आपने बना ली इतने, और आपको इन्होंने पूछा पहला क्वेश्चन हु इज़ सन ऑफ एफ, यानी जो एफ का पुत्र है उसका नाम पूछा गया। अगर आप गल करिए एफ कितने अपने को ए वाला है एफ, इसके पुत्र की गल चल रही है, ये दोनों की ने ए और एफ की ने हसबैंड वाइफ, ये पुत्र की गल चल रही है, तो अपने को कौन है बी, जो कि पॉजिटिव निशान वाला रिप्रजेंट करता है, यानी ये आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन बी। बी जो है यह पुत्र है किसका, एफ का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन बी। उस तो बाद नैक्सट आपको पूछा गया हु इज़ ग्रैंड मदर ऑफ डी, यानी जो डी की ग्रैंड मदर है वह कौन है, डी की ग्रैंड मदर, डी जो है वह है इत्थे ये फादर ने ये, और ये ग्रैंड मदर पूछा गया कौन ने। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो डी के ग्रैंड मदर दे रखे ने आपां वो दे रखे ने सी ऑप्शन एफ, यानी जेडे दे विच एफ है यह कौन होएगी, ग्रैंड मदर होएगी, क्योंकि ये दोनों की ने हसबैंड वाइफ ने, इसलिए एफ कौन बन जाएगा, इस ग्रैंड मदर बन जाएगी, यानी नानी बन जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन एफ। आई होप तो ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपको एक एनालॉजी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया सी, जो सी 42 नंबर क्वेश्चन, जिमें मैन्यू है जोड़ा ये फूड नाल एसोसीएट है, इस तरह कैटालॉग किस चीज़ नाल एसोसीएट होएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन दैट इज़ बुक्स, बुक्स नाल एसोसीएट होएगा, जो कि अपने को कैटालॉग हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन बुक्स, वो किमें होएगा ये भी तुसीं देख लो, ਇਹਦਾ राइट आंसर अपना बन गया डी ऑप्शन। वो किमें लिस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, यानी जो लिस्ट होंगी है लिस्ट
of all kinds of books is located in library। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ प्रकार ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ दैट इज़ कैटलॉग। इस क्वेश्चन ਦਾ ਰਾਈਟ आंसर ਆਪਣੇ ਕੋਲ डी ऑप्शन बुक्स। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 43 नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है अपन एक डायरैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इस कहा गया इन्हों के द्वारा जो रमन है इस द्वारा अपनी यात्रा जी स्टार्ट की जाती है वैस्ट की तरफ तो, यानी एक परसन है जिसका नाम है रमन, इस द्वारा अपनी यात्रा स्टार्ट की जाती है वैस्ट की तरफ तो आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। यानी आपने सब तो पहले की बना लेना डायरैक्शन बना लेनी है नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट। यानी एक परसन है जो कि इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ये कितना डिस्टेंस दे रखा अपन 30 मीटर का दे रखा है, 30 मीटर का। उस तो बाद ही टर्नड टूवर्ड्स राइट, यानी उसके द्वारा राइट टर्न लिया जाता है और जाता है फिर 20 मीटर। यानी मान लो इधर टर्न लिया ने और इधर चलिया गया है 20 मीटर 20 मीटर। नैक्सट फिर इस द्वारा लैफ्ट टर्न लिया जाता है और डिस्टेंस तय किया जाता है 10 मीटर। लैफ्ट इधर हो जाएगा 10 मीटर तय ने इधर कर लिया। और नैक्सट अपने इन्होंने कहा अपन टर्नड टू हिज लैफ्ट एंड वॉकड 40 मीटर, यानी इसका लैफ्ट नीचे नहीं होएगा तो ये 40 मीटर है जो लैफ्ट की तरफ चलता है, ये बन गया अपने को 40 मीटर और ये चलिया गया इत्थे। और उस बाद नैक्सट क्या इन्होंने 40 मीटर जाने तो बाद ही नाउ टर्नस टू द लैफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर, यानी इस तो बाद ये 5 मीटर जो लैफ्ट की तरफ मूव करके चलता है। यानी इसका लैफ्ट किस तरफ होएगा, इस तरफ होएगा, ये चलिया गया इधर, ये चलिया गया इधर 5 मीटर का। और अपन पूछा गया इस तो बाद इसके द्वारा लैफ्ट टर्न लिया जाता है, इसका लैफ्ट उपर हो गया, ठीक है। ये डायरैक्शन पूछा गया कि है, ये उपर कि डायरैक्शन होगी अपने को दैट इज़ नॉर्थ, उपर में होएगी तो अपने को कि डायरैक्शन होगी नॉर्थ, यानी इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन दैट इज़ ए ऑप्शन नॉर्थ डायरैक्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन नॉर्थ डायरैक्शन। आई होप तो ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 44 नंबर क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन अ परसन बीइंग आस्कड वट टाइम इट वाज आंसर्ड द हर्ज ऑफ द डे, यानी एक व्यक्ति को जदों उस वेले दे समय बारे पूछा गया उसके द्वारा उत्तर दिता गया दिन दे जो घंटे रह गए हैं ਉਹ दिन दे बीत गए समय का 5वां हिस्सा हैं। यह किहड़ा समा सी, यानी इस दे विच कंसीडर कर लो 1/5 लिखा इन्होंने 1/5 एक्स कंसीडर कर लो कि वह टाइम होएगा। और नैक्सट आपने टाइम कंसीडर कर लो 24 - एक्स, यानी ये कुछ ना कुछ घटाना पेगा तां ही आपां जिहड़ा एग्जैक्ट टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो आपां नूं पता है इस दे विच आपां की कर सकते हैं, इस तो बाद इसनूं ब्रैकेट खोल देंगे आपां 1/5 एक्स इज़ इक्वल टू 24 - एक्स। एक्स एड इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी ये ऐड हो जाएगा 1/5 एक्स प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 24। इधर कितना आ जाएगा अपने को 5 इधर आप एलसीएम लैके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1x प्लस 5x 6x, जोड़ा 5 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 24 5 120। एक्स की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 120 वटे करेंगे जो आप 6 तो अपने को जी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 20। 20 में आप लिख सकते हैं 8 बजे 8 PM लिख सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन 8 PM। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन 8 बजे 8 PM। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 45 नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा गया जो आप इन्हों अरेंज कर लाँगे उस तो बाद जो मिडल के आएगा नंबर, यानी मिडल के जो वर्ड आएगा वो आपको पूछा गया किहड़ा आएगा, यह बेसिकली अपन क्वेश्चन के पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन सब तो पहला जो अल्फाबैटिकली अरेंज कर सकते हैं अपन उन्होंने अरेंज करना होंगे। अगर आप गल करिए सब तो पहला अपने को ये ओ गिवन है, एस तो सारे गिवन है, तो अपने को दूजे नंबर पर दूसरे जो गिवन है अपन ओ गिवन है H N और H। तो आपको पता है ओ तो पहला कि डिजिट आता है अपने को H आता है, यानी आप ये कह सकते हैं ये अपने को सब तो पहला कि यूज़ होएगा इन्होंने दोनों के यूज़ होएगा शार्प। पहले नंबर पर आ गया अपने को शार्प, सैकेंड नंबर पर अपने को शौक आ गया शौक, थर्ड नंबर पर अपने को आपको पता है N आएगा, N तो बाद आएगा वो MNO, यानी नैक्सट अपने को आ गया स्नूकर। नैक्सट अपने को आएगा SOCKS। नैक्सट अपने को जो आएगा लास्ट से वो आएगा साउंड साउंड। आपको पूछा गया मिडल के वो है स्नूकर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन दैट इज़ स्नूकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन स्नूकर। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 46 नंबर क्वेश्चन इस आपको कहा गया इन्हों के द्वारा अगर अज की है फ्राइडे यानी शुक्रवार है, आपने पूछा गया 73 दिनों बाद 73 डेज आफ्टर किहड़ा दिन होएगा। 73 डेज में आप लिख सकते हैं 70 + 3 लिख सकते हैं। 70 है जोड़ा यह डिनोट करता है, यानी अज टूडे की है फ्राइडे,
ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਫਰਾਈਡੇ शुक्रवार। अगर आप गल करिए 70 दिनों बाद 7 नाल जो आप जिन्हें मर्जी नंबर नाल मल्टीप्लाई कर दीए तो अपने को फ्राइडे ही आएगा। फ्राइडे दे विच आपने 3 दिन इनक्रीज़ कर देने यानी फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। तो अपने को तीजे दिन किहड़ा डे आ गया दैट इज़ मंडे सोमवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को जो दिता गया है बी ऑप्शन मंडे सोमवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन सोमवार। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया आपको 47 नंबर क्वेश्चन इस सीरीज़ के पूछा गया है अपने को कि इस दे विच जिहड़ा ओड नंबर है वह किहड़ा है। सब तो पहला मैं तुहानूं इसका आंसर दस देना। इसका जिहड़ा आंसर है अपने को वो है डी ऑप्शन 135। 135 इस दे विच नहीं आएगा, इस दे विच यूज़ होएगा 136। किवें यूज़ होएगा वह भी मैं तुहानूं दस देना। इस दे विच 64 प्लस 7 गए 64 प्लस 7 करांगे पहला 71 आ जाऊगा। 71 प्लस आप कितना करिए कि अपने को 80 आ जाए, अपन 9 ऐड करना पऊगा। उस तो बाद अपने 11 ऐड करता 91 आ गया। 91 दे अपने 13 ऐड करता 104 आ गया। 104 दे विच 15 ऐड करता अपने को 119 आ गया। 119 दे विच आपां जदों 17 ऐड करांगे तो अपने को नंबर 136 आना चाहिए, बट इन्होंने कितना दे रखा है 135। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा 135 इस करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 48 नंबर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच कहा गया है रमन एंड दमन। रमन एंड दमन दो परसनस ने। रमन एंड दमन एक रो दे विच बैठे ने, एक रो दे विच खड़े ने, स्टैंड खड़े ने। रमन इज़ द 12th फ्रॉम लैफ्ट साइड, यानी जो रमन का जो रैंक है वह कितना है 12th 12वां रैंक आ किसका रमन का। नैक्सट आपको क्या है लैफ्ट साइड तो एंड दमन इज़ 18th फ्रॉम राइट साइड, यानी ये मान लो दमन है, ਇਹਦਾ कितना रैंक है 18th और इसका नाम की है दमन। दमन और आपको कहा गया है इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, यानी अगर ये दोनों इंटरचेंज कर लैन इत्थे रमन आ जी इत्थे कौन आ जी दमन आ जी। आपको कहा गया है रमन है जिहड़ा रमन है जो ये 25th हो जाती है लैफ्ट तो यदा रैंक कितना बन गया 25th। आपको पूछा गया टोटल परसनस किन्ने हो गए इस रो के। आपको लैफ्ट तो भी साइड पता लग गया राइट तो भी पता लग गया। आप फाइंड कर सकते हैं इस दे विच 25 दे विच 18 ऐड कर देंगे माइनस 1 कर देंगे। वो क्यों करांगे वो भी तुसीं जान लो, क्योंकि जिहड़ा इस दे विच नंबर है यानी इस दे विच रमन या फिर दमन है इस दे विच 2 बारी काउंट होगी, क्योंकि इस दे विच जदों आपां इस तरफ तो काउंट किया तां भी काउंट होगी, इस तरफ तो काउंट किया तां भी काउंट होगी। इस करके आपने एक बारी माइनस करता 25 ते 8 33 ते 10 43, यानी माइनस करांगे 42, यानी 42 पर स्टूडेंट्स ने इस रो दे विच। इसका राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन 42 42। इसका राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन 42। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 49th नंबर क्वेश्चन इना क्यू सीमा इज़ 10th फ्रॉम फ्रंट, यानी जो सीमा है ये फ्रंट तो है 10th। मान लो ये है फ्रंट, मान लो ये है फ्रंट और इत्थे बैठी है सीमा सीमा और इसका जो रैंक है फ्रंट तो कितना 10th है। और नैक्सट अपन क्या है रीमा इज़ 25th बिहाइंड एंड, यानी पीछे तो कितना नंबर है 25th, यानी इस तरफ तो मान लो कितना नंबर है 25th। किसका इसका नाम है रीमा रीमा और इसका नाम इसका रैंक है 25th। और नैक्सट क्या है इन्होंने ममता इज़ जस्ट इन द मिडल ऑफ द टू, यानी इत्थे है ममता एक पोजीशन है जो कि इन्होंने दोनों की कॉमन पॉइंट है। इत्थे कौन है ममता, दोनों का कॉमन पॉइंट है ममता, दोनों का जिहड़ा मिडल है मिडल दे विच। इफ़ देयर वी 50 परसनस इन द क्यू, यानी एक लाइन दे विच इस लाइन दे विच अगर टोटल 50 स्टूडेंट्स ने तो आपको पूछा गया है जो ममता की फ्रंट तो पोजीशन है वो बेसिकली आपको पूछा गया, यानी उपर तो पोजीशन है वो पूछा गया। ये आपको इस क्वेश्चन के पूछा गया। सब तो पहला अगर गल करिए अपने को टोटल परसनस किन्ने ने अपने को टोटल किन्ने ने 50, टोटल किन्ने ने 50 और जो सीमा है इस तरफ 10 और इस तरफ तो कितना है रीमा 25, यानी 35 का अपन माइनस करना पएगा तो अपने को किन्ने परसेंट बच गए 15 बच गए जो कि इस दे विच आउणगे। यानी अगर आप गल करिए इत्थे अपने को 2 पोजीशन ने, 2 पोजीशन इहदे विच डिफरेंस कितना 15 का। इहदे विच एक ममता बैठी है, यह किन्नवीं पोजीशन होएगी इहदी 8th होएगी, 7 इत्थे होणगे 7 ही इत्थे होणगे, यानी 8th पोजीशन किहदी हो चुकी है अपने कोल हो चुकी है हो ममता दी। ममता दी जिहड़ी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गई आपां नूं 8th, यानी आप ये कह सकते हैं अगर 10 उपरों है तो 8 अपन होर ऐड करना पड़ेगा, 10 + 8 कर देंगे तो अपने को आंसर बन जाएगा 18। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन दैट इज़ 18 18। आई होप तो ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। इसका राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन 18। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 50 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल हैव सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ द ईयर 2020। जिस तरह का ईयर 2020 है उस तरह का जो साल दिता गया दिते गए 4 ऑप्शन के विचों वो किहड़ा दिता गया वो दिता गया 2024 जो कि एक लीप साल है। दोनों की ने ये लीप साल ने, दोनों के विच यही जी कॉमन है चीज़
जिस दे विच दोनों की साल ने लीप साल ने, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने को सी ऑप्शन 2024। नैक्सट क्वेश्चन अपने को नैक्सट जो 10 क्वेश्चन ने वो इंग्लिश लैंग्वेज तो पूछे गए इस पेपर के। पहला जो इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा गया वो सी 51 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच आपने इस ब्लैंक दे विच फिल करना है कोई जोड़ा वर्ड होएगा जिस दे नाल ये बिल्कुल सही हो जाए सेंटेंस अपना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम ऑप्शंस। इस दे विच जो राइट आंसर है अपना वो है ए ऑप्शन बियर लूजिंग। बियर लूजिंग यह सेंटेंस इस तरह कंप्लीट होएगा, शी कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ डैश, डैश की जगह आएगा अपने को लूजिंग, लूजिंग द इलैक्शन टू हर बिटर राइवल, यानी इतने आएगा अपने को बियर, इतने अपने को आएगा दैट इज़ लूजिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन। इस सेंटेंस का जो मतलब है वो की बनया ये भी तुहानूं पता होना चाहिए। वो अपने कंपीटीटर तो इलैक्शन विचों हारन दा विचार सहन नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन बियर लूजिंग। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया आपको परसैप्ट। परसैप्ट का जोड़ा मोस्ट ओपोजिट है जोड़ा, यानी इसके नीयरली कि वर्ड है जोड़ा वो बिल्कुल ये एग्जैक्ट बनेगा परसैप्ट के। परसैप्ट का अर्थ की होंगे निज़म, नियम, यानी इंग्लिश के आप बोल सकते हैं रूल, रूल यानी निज़म। इसका अर्थ होंगे परसैप्ट का। दिते गए 4 ऑप्शन के जो ओपोजिट वर्ड दिता गया है वो दिता गया है डी ऑप्शन डिसऑर्गेनाइजेशन। डिसऑर्गेनाइजेशन का अर्थ की होंगे, इसका अर्थ होंगे विदाउट एनी रूल, विदाउट एनी रूल या फिर निज़म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन डिसऑर्गेनाइजेशन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन। इस आपने पूछा गया है हार्डली हैड ही सीन हर आंट दैन ही स्टॉप्ड फाइटिंग। इस दे विच कोई जी है मिसटेक है, यानी अपने इनू करैक्ट करके लिखना है इस सेंटेंस को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपना वो दिता गया आपको ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर दिता गया है। जदों आप हार्डली यूज़ करते हैं इस दे नाल आपां नूं हमेशा ही वैन यूज़ करते हैं, आप दैन यूज़ नहीं करते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन हार्डली हैड सीन ही सीन हर आंट वैन ही स्टॉप्ड फाइटिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को जो पूछा गया सी इंग्लिश लैंग्वेज तो इस दे विच 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन के विच आपां नूं पूछा गया सी एक सेंटेंस के 4 पार्ट दिते गए सी, इन्हों आपने अरेंज करना सी ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हो सके, बन सके। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दे रखे आपको वो दिता है ए ऑप्शन 3421। 3421 एवरी ईयर मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री अपीयर इन द पंजाब पुलिस एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन 3421। नैक्सट क्वेश्चन अपने को इस आपने रिप्लेस करना है एडवर्ब विद नाउन, यानी एडवर्ब जो है इसनों आपने नाउन के नाल रिप्लेस करना है। ही वॉचड द गर्ल केयरफुली, ही वॉचड द गर्ल केयरफुली। इस आपने जो एडवर्ब है इसनों आप नाउन के नाल रिप्लेस करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन केयर वाज टेकन वाइल वॉचिंग हर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 56 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरैक्ट फॉर्म। इनडायरैक्ट फॉर्म के आपने इसको कन्वर्ट करना है। मोहित सैड हैलो यू आर हेयर। इसका आपने इनडायरैक्ट फॉर्म के आपने इसको की करना है, कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन मोहित वाज सरप्राइज्ड टू सी हिम देयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 57 नंबर क्वेश्चन। इस आपको इडियम एंड फ्रेज दिता गया है, इसका आपने जो मीनिंग है वो फाइंड करना है। वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। इस जो आपको राइट आंसर दिता गया है वो दिता गया है बी ऑप्शन जैलस। जैलस जो है ये बिल्कुल राइट आंसर दिता गया है, यानी आप किसी परसन को जो अखा कढ़ के देखते हैं उसमें आप बोलते हैं जैलस फील कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन जैलस। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 58 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एप्रोप्रिएटली स्पेल्ड। एप्रोप्रिएटली स्पेल्ड केड़ा ऑप्शन के दिता गया, ये दिता गया है सी ऑप्शन के एक्यूटेंस। ACQUAINTANCE। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन एक्यूटेंस। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन। इस आपको एक ब्लैंक दी गई है, इसमें आपने फिल करना है। इसका जो राइट आंसर दे रखे आपको वो दे रखा है ए ऑप्शन विद। जो भी परसन के नाल आप यूज़ करते हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं दैट इज़ प्रैपोजिशन विद। ही डज नॉट एग्री विद हिज फ्रेंड अबाउट पॉलिटिक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन विद।
नैक्सट क्वेश्चन अपने को 60 नंबर क्वेश्चन, वट इज़ द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है अपने फाइंड करनी है। दे डिक्लेयर्ड हिम आ कल्प्रिट, यानी इनू अपने पैसिव वॉइस के विच कन्वर्ट करना है। यह पैसिव वॉइस के कन्वर्ट किया गया है बी ऑप्शन विच, ही वाज डिक्लेयर्ड आ कल्प्रिट बाय दैम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन, ही वाज डिक्लेयर्ड आ कल्प्रिट बाय दैम। नैक्सट 10 क्वेश्चन जोड़े पंजाबी व्याकरण तो पूछे गए इस पेपर के, उन्होंने डिस्कस करते हैं डिटेल के। सब तो पहला क्वेश्चन पूछा गया थी 61 नंबर क्वेश्चन, पंजाबी धुनियाँ किन्नी तरह दियां होंदियां हन। जो पंजाबी दियां धुनियाँ होंदियां ने वो होंदियां ने दो प्रकार दियां, किहड़ियां-किहड़ियां, खंडी ते अखंडी, खंडी अते अखंडी, यह दो प्रकार दियां धुनियाँ होंदियां ने पंजाबी दे विच, पंजाबी लैंग्वेज दे विच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन, खंडी अते अखंडी धुनियाँ दो प्रकार दियां। नैक्सट पूछा गया 62 नंबर क्वेश्चन, बहुत चंगी हेठ लिखे शब्दों विचों की है। बहुत चंगी तुहानूं पता लग रहा है यह की है, एक प्रकार का दिते गए 4 ऑप्शन विचों गुणवाचक विशेषण, यानी एक किसी चीज़ का गुणवाचक विशेषण जिहड़ा दिता जा रहा है, यानी किसी का गुण दसिया जा रहा है, उसकी विशेषता दसी जा रही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। नैक्सट अपने चूज करना है भाववाचक नाव चुनो। भाववाचक नाव सबनों पता होएगा वो है गमी खुशी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन, गमी खुशी जो दे रखे आपां वो दिता गया है भाववाचक नाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन, गमी खुशी। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कोई गीत गा रहा है, इस दे विच कथन विच वरते गए पड़नाव की किस्म दसो। यानी इस दे विच जो पड़नाव की किस्म है वह आपां पूछी गई है, किहड़ी दित्ती गई है। इस दे विच राइट आंसर दे रखे आपां नूं ऑप्शन, अनिश्चयवाचक। इस दे विच कोई की गल चल रही है तो आपां नूं ये नहीं कन्फर्म हो रहा कौन गा रहा है, किवें गा रहा है, तो आपां इहदे विच अनिश्चयवाचक पड़नाव यूज़ करांगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन, अनिश्चयवाचक पड़नाव आ। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 65 नंबर क्वेश्चन, पड़नावी विशेषण चुनो। पड़नावी विशेषण दिते गए 4 ऑप्शन विचों किहड़ा है, ये दिता गया है ए ऑप्शन, कौन। कौन जो है यह एक है पड़नावी विशेषण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन, कौन। गुरमुखी लिपि किहड़े गुरु जी ने शुरू की सी। गुरमुखी लिपि तो सबनों पता होएगा श्री गुरु अंगद देव जी, जो कि सिखां दे सैकेंड गुरु जी सी, सैकेंड यानी दूसरे गुरु सी, सैकेंड गुरु सी, जो कि श्री गुरु अंगद देव जी सी। और पहले कौन सी, श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी यह सी सिखां दे पहले गुरु, और जो सैकेंड गुरु सी गुरु अंगद देव जी, इन्हां दे द्वारा जो गुरमुखी लिपि सी वह सिरजी गई सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन, श्री गुरु अंगद देव जी। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 67 नंबर क्वेश्चन, सुचेत शब्द का समानार्थक की है। सुचेत शब्द जो दे रखे आपां इसका समानार्थक आपां पूछा गया। इसका जो समानार्थक शब्द दे रखे वो दे रखे आपां सजग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन, सजग। नैक्सट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, जिन्होंने शब्दों अगे होर ना वंडिया जा सके उन्होंने की बोलते हैं आपां। उन्होंने आपां बोलते हैं मूल शब्द या फिर रूढ़ शब्द भी आपां इन्होंने बोलते हैं। रूढ़ शब्द, मूल शब्द या फिर रूढ़ शब्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन, मूल शब्द या फिर रूढ़ शब्द। तीवी की थां तीमी, यानी वावी की जगह आप एम यूज़ करते हैं, मम्मा यूज़ करते हैं, वह किस उपबोली के आप यूज़ करते हैं। यह तो सबनों पता होएगा यह है मलवई। इसके लिए एक यह बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पाया गया सी अपने गैस पेपर के, तो उन्हें देखा भी होएगा गैस पेपर के एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पाया गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन, दैट इज़ मलवई। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है, किहड़ा शब्द दरख्त का समानार्थी है। दिते गए 4 ऑप्शन के जो दरख्त का समानार्थी शब्द दे रखे आपां दे रखे बिरख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन, बिरख। ये 10 क्वेश्चन ने जोड़े पंजाबी व्याकरण तो इस पेपर के पूछे गए थे। नैक्सट 30 क्वेश्चन ने जोड़े 30 क्वेश्चन ने वह जीके तो पूछे गए थे, जिस दे विच करंट अफेयर्स भी इंक्लूड सी। उन्होंने डिस्कस करते हैं डिटेल के। सब तो पहला अपने को 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सी, महाराजा नरेंद्र सिंह सक्सीडड विच ऑफ द फॉलोइंग महाराजा। यानी महाराजा नरेंद्र सिंह इन्हां विचों किहड़े महाराजे का उत्तराधिकारी सी। महाराजा जो नरेंद्र सिंह सी यह उत्तराधिकारी सी राजा करम सिंह का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन, राजा करम सिंह। यानी सब तो पहला आएगा करम सिंह, नैक्सट आएगा अपने को नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह। उस तो बाद कौन आएगा, नरेंद्र सिंह तो बाद मोहिंदर सिंह, मोहिंदर सिंह तो बाद आएगा राजेंद्र सिंह। नैक्सट राजेंद्र सिंह तो बाद आएगा भूपेंद्र सिंह तो बाद आएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह।
यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह दीआं पीढ़ियां दे बारे ही पूछा गया सी ये क्वेश्चन। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਇਹ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੀਡ ਕਰਨਗੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 72 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 72 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜੋ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੁੱਕ, ਕਿਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਨੇਹੜੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਨੇਹੜੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਨੇਹੜੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 73 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 73 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 74 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 7। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 13, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 7। ਯਾਨੀ 74 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 7। ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਮਾਧਵ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵਾ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ IQ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਵਾਈਫਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਲੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ GK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ GK ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ 10 ਦੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਮਾਧਵ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ GK ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 76 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਥਰਡ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਫੋਰਥ ਤੇ ਹੈ ਜਲੰਧਰ। ਯਾਨੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ A ਆਪਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ 77 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, 77 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਸਕੀਮ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਐਂਡ ਕਮੈਂਡ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਐਂਡ ਕਮੈਂਡ।
नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 78 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया वट वाज द थीम, यानी थीम की सी, विषय की सी पंजाब की जो टैबल्यू सी यानी पंजाब की जी झाकी सी गणतंत्र दिवस 2019 न्यू दिल्ली के जो दिखाई गई सी उस जो पंजाब की टैबल्यू सी इसका जो थीम सी वो बेसिकली आपको पूछा गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर क्योंकि 1919 के होया सी और 2019 इसकी 100th एनिवर्सरी सी, इसलिए पंजाब की सरकार के द्वारा इसनूं इस दे लई थीम कंसीडर किया गया सी जलियांवाला बाग मैसेकर नूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन जलियांवाला बाग मैसेकर थीम कंसीडर किया गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन जलियांवाला बाग मैसेकर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 79 नंबर क्वेश्चन 79th नंबर क्वेश्चन। 79th नंबर क्वेश्चन के पूछा गया आपां किला रायपुर जो है पंजाब दे विच यह किस ईवेंट के लिए जाना जाता है, जो किला रायपुर है। किला रायपुर जो है यह जाना जाता है किला रायपुर रूरल ओलंपिक्स के लिए, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन किला रायपुर जाना जाता है रूरल ओलंपिक्स के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन रूरल ओलंपिक्स। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 80 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया सी आपां विच ऑफ द फॉलोइंग हैड ड्राफ्टड द डैक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्लेज इन 1930, यानी हेठ लिखिया विचों आज़ादी का ऐलान का वादा 1930 किसने किया सी। यह जो वादा किया गया सी वो किस दे द्वारा किया गया सी। यह वादा किया गया सी महात्मा गांधी जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन महात्मा गांधी जी। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 81 नंबर क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। हाईएस्ट पॉइंट किहड़ा दिते गए 4 ऑप्शनों के यह है कंचनजंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन कंचनजंगा कित्थे लोकेटेड है, सिक्किम के सिक्किम के लोकेटेड है कंचनजंगा। इस तो इलावा यदि हाइट भी पूछी जाती है काफ़ी एग्जाम के याद रखना है 8586 मीटर 8586 मीटर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 82 नंबर क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ विंटर रेन्स इन नॉर्दर्न इंडिया। हेठ लिखिया विचों उत्तरी भारत में सर्दियों की बारिश का कारण किहड़ा है। जो सर्दियों में बारिश का कारण बनता है वह बनता है वैसटर्न डिस्टर्बेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन वैसटर्न डिस्टर्बेंस। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी विच इज़ द फस्ट गोल्डन जुबिली फिल्म ऑफ इंडिया। फस्ट गोल्डन जुबिली फिल्म ऑफ इंडिया जी फिल्म है वो किहड़ी है, ये है संत तुकरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन संत तुकाराम जो है ये है इंडिया की पहली गोल्डन जुबिली फिल्म, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन संत तुकाराम। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 84 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया सी आपां 84 नंबर क्वेश्चन के हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2000, यानी 2000 दे विच जो कमेटी के द्वारा रिव्यू किया गया सी वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस तरह अपना जो संविधान है वो काम कर रहे हैं, उसनूं एक कमेटी बनाई गई सी। एक चेयरमैन दे कौन बने सी इस कमेटी के। इस कमेटी के जो चेयरमैन बनाया गया सी वो बनाया गया सी जस्टिस MN वेंकटचैलिया, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को भी ऑप्शन जस्टिस MN वेंकटचैलिया जी सी जो इन्हों चेयरमैन बनाया गया सी इस कमेटी के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 85 नंबर क्वेश्चन। वैन वर द फस्ट जनरल इलैक्शनस हैल्ड, यानी पहलियां जो चोणां होईयां सी आम चोणां ये कदों होईयां सी। ये होईयां सी ए ऑप्शन 1951-52 के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन 1951-52। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 86 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सैटेलाइट मिसाइल इज़ टेस्टड बाय इंडिया ऑन 27 मार्च 2019। 27 मार्च 2019 एंटी सैटेलाइट मिसाइल इंडिया के द्वारा टेस्ट की गई सी, इसका नाम की सी, इसका नाम सी मिशन शक्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन मिशन शक्ति। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 87 नंबर क्वेश्चन। इंडिया के विच जो साइमन कमीशन है इसके द्वारा इंडिया के कदों विजिट किया गया सी, इसके द्वारा इंडिया के विजिट किया गया सी 1928 के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन 1928। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 88 नंबर क्वेश्चन। ऑन विच डेट नैशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑबजर्वड। नैशनल कंज्यूमर राइट्स डे कदों मनाया जाता है, हर साल। इस काफ़ी स्टूडेंट ने इसनों कन्फ्यूज किया वर्ल्ड कंज्यूमर डे के नाल। वर्ल्ड कंज्यूमर डे के नाल इसनों काफ़ी स्टूडेंट ने कन्फ्यूज किया वर्ल्ड कंज्यूमर डे के नाल। जो नैशनल कंज्यूमर डे है ये हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर बनना सी ए ऑप्शन 24 दिसंबर। बट जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे है ये हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च नहीं सॉरी 24 मार्च 24 मार्च को मनाया जाता है।
ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੋਨੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਬਟ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च और नैशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दसंबर, दोनों इंपोर्टेंट ने, याद रखने ने। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 89th नंबर क्वेश्चन, इंडिया का जो सब तो वड्डा लार्जेस्ट म्यूजियम है वह किहड़ा है। यह है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। इसका राइट आंसर है अपने कोल डी ऑप्शन जो दिता गया है अपन डी ऑप्शन के इंडियन म्यूजियम जो है कोलकाता के इसनों कंसीडर किया जाता है एज द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, जिसनों आप कंसीडर करते हैं। इसका नाम है अपने कोल इंपीरियल म्यूजियम। इसका जो नाम है वो है प्रॉपर इंपीरियल म्यूजियम, जो कि वैस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता के लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने कोल डी ऑप्शन इंडियन म्यूजियम कोलकाता। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 90 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया नीति आयोग की फुल फॉर्म। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म दी है अपन वो दी है नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह प्लैनिंग कमीशन से पहला प्लैनिंग कमीशन से बाद इसनूं रीनेम किया गया सी, इसका न्यू नेम दिता गया सी नीति आयोग। नीति आयोग स्टैंड करता है नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जोड़े चेयरमैन होंगे ने वो होंगे ने देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री। ये भी याद रखना है, ये भी काफ़ी पूछते हैं एग्जाम के। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन। इस आपको पूछा गया 91 नंबर क्वेश्चन के 91 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। यानी फंडामेंटल ड्यूटी नाल एसोसीएट है 51A आर्टिकल। आपको पूछा गया है किस चीज़ नाल एसोसीएट है, दिते गए 4 ऑप्शन के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने ये किस दियां बनदियां ने, ये बनदियां ने सिटीजन ऑफ इंडिया दियां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने को डी ऑप्शन सिटीजन ऑफ इंडिया। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन के आपको बेसिकली पूछा गया है 92 नंबर क्वेश्चन के वट कैन वी मैक्सीमम इंटरवल, यानी 2 सैशनस के जो पार्लीमेंट के सैशन होंगे ने दोनों हाउस के, इस जो डिफरेंस होवे इस तो ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी किन्ने टाइम का जो इंटरवल का जो डिस्टेंस है वो नहीं होना चाहिए इस तो ज़्यादा। मैक्सीमम इंटरवल कितना हो सकता है, ये हो सकता है मैक्सीमम इंटरवल 6 महीने का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने को ए ऑप्शन 6 महीने। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 93 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव चीफ इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इफ, यानी जो राष्ट्रपति होंदा है यह जो चीफ इलैक्शन कमीशन होंदा है इसनों हटा सकता है। किस केस के विच हटा सकता है, अगर दोनों हाउसेस के द्वारा 2/3 मेजोरिटी के नाल पास करके इन्हों एक लैटर सौंप दिता जाए तो जो प्रेजिडेंट होंगे ने राष्ट्रपति होंगे ने वो चीफ इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हटा सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन द रेजोल्यूशन इज पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद 2/3 मेजोरिटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया हु इज़ द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, यानी जो कानून का पहला अधिकारी होंदा है वो किहड़ा होंदा है, ये होंदा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंदा है, यह होंदा है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेजेंट कौन ने, प्रेजेंट के जो प्रेजेंट के अटॉर्नी जनरल इंडिया के उन्हें के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, ये भी याद रखो के वेणुगोपाल। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 95 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया 95 नंबर क्वेश्चन के आपको विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज इंटरस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर आ यूनीफॉर्म पॉलिसी ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिट इन द गवर्नमेंट सैक्टर एज अ होल इन इंडिया, यानी हेठ लिखिया विचों केड़ी एजेंसी यह जिम्मेवारी सौंपी गई है कि पूरे भारत विच सरकारी खेत्र विच लेखा अते ऑडिट बारे एकसार नीति नूं यकीनी बनाया जाए, यह किहड़ी अथॉरिटी है। इसका जो राइट आंसर दे रखा अपन वो दे रखा बी ऑप्शन के कैग कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन कैग, इन शॉर्ट बोलते हैं आप कैग कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्रेजेंट के जोड़े कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने उसका आंसर तुम मैंने कमेंट बॉक्स में लिख के दसना। प्रेजेंट के जोड़े कैग ने इंडिया के उन्होंने नाम कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसो। नैक्सट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, यानी जो रिकमेंडेशन दी गई सी पंजाब नूं वंडण दी वो यूनीलिंगुअल, यानी यूनीलिंगुअल स्टेट पंजाब दे विच वंडिया गया सी। पंजाबी जो बोलते सी उसनूं पंजाब दे विच वंड दिता गया सी, यानी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश पंजाब वाज फॉर्मड एज यूनीलिंगुअल स्टेट फॉर पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स, यानी किस कमीशन के उपर किया गया सी। यह जो कमीशन का नाम है वो है शाह कमीशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन शाह कमीशन।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 57 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਕੇਮ ਡੈਸ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਸੀ 18ਵੀਂ ਸਟੇਟ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 18ਵੀਂ। ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? 25 ਜਨਵਰੀ 1971 ਨੂੰ। 25 ਜਨਵਰੀ 1971 ਨੂੰ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ 18ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 18ਵੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ 98 99 100। 98 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅਪੈਕਸ ਬੋਡੀ ਇਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 99 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 99th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਡ ਕੁਆਇੰਡ ਦਾ ਟਰਮ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 100 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, 12 ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ 14। ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 17 14 1 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ 14। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਏ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਓਨਲੀ 12 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟ ਕਲਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪੇਪਰ। 100 ਦੇ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ। 100 ਦੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਿਤ ਕਰਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ 100% ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਟ ਔਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 100%। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਇਸ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/4 ਕੀ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 50 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, 5 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੇ 45 ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪੇਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ IQ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ IQ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ IQ ਚੈਨਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬ GK ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 7 ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ GK ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9
क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੇ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨੋਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7098 68826। ਇਹ ਹੈ WhatsApp ਨੰਬਰ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ WhatsApp ਦੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਐਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 700 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਐਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਸ ਪੇਪਰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 7098 68826। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ IQ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ, ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ IQ।